Hello students, welcome back to your own channel, that is Bioscience, and today in this video we are going to study about the extraembryonic membrane. हिंदी में बताएं तो हम आज पढ़ने वाले हैं about the membranes which are present over the embryo during pregnancy. Extraembryonic membranes. पहले तो हम समझते हैं जरा ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे लिखेंगे. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन लेयर्स व्हिच आर फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रियो एंड व्हिच आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल, व्हिच प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो एंड फीटस. नाउ अब हम जरा समझते हैं कि वो चार लेयर हैं कौन सी. एक्चुअली में दैट 4 लेयर्स आर, नंबर 1 इज chorion, then amnion, yolk sac and allantoin. ध्यान रहे these 4 layers play a major role. इनके बिना एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है. अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इनके काम क्या क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल हमें डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है क्या, कैसी होती हैं, कहाँ पर होती हैं, और आगे हम पढ़ेंगे इनके फंक्शन के बारे में. फिलहाल हमें डायग्राम की हेल्प लेते हैं. ना सपोज यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था सर, दिस इज chorion and this chorion is formed from the trophoblast or you can say the trophoectoderm. और हमें पता है, suppose let this is the uterus, this is the uterine part, this is the chorion which is formed from the trophoectoderm. हमें पता है कि सर इसी chorion से आती है chorionic villi. Suppose these are the chorionic villi which are attached with the maternal blood, which are attached with the maternal blood, and this connection between the chorionic villi and the endometrium is known as placenta. इसकी डेफिनेशन तो याद होगी आपको. इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द मैटरनल टिश्यू एंड द फीटल टिश्यू. चलिए आगे बात करते हैं ना. ये रही chorion की इनर मेम्ब्रेन. बीच बीच में आपको याद दिला दूं, ये रही हमारे पास chorion की इनर मेम्ब्रेन which then form a structure that is known as umbilical cord. Now this is umbilical cord and here is the embryo. Now this embryo is covered by a further layer which is known as, हमने पढ़ा था जो हमारे पास इनर सेल मास एंड दे स्टार्ट टू मूव अपवर्ड टुवर्ड द सेल्स ऑफ रॉबर, जो डिजनरेट हो रहे थे, वहाँ पर एक छोटी सी कैविटी बनी थी दैट इज नोन एज एमनियन, जो बाद में एक्सटेंड कर जाती है अराउंड द एम्ब्रियो. नाउ दिस इज एम्ब्रियो, मैं थोड़ा सा लेबल कर देते हैं, दिस इज एम्ब्रियो and this is chorion. The outermost layer is chorion which also take part in the placenta formation, and this is the inner layer which is known as amnion. Clear? Both chorion and amnion are originate from the trophoectoderm, that is trophoblast. Clear? Now there are two sac-like structure. This is known as yolk sac, whereas this is known as allantois. अब ये हमारे पास 4 लेयर हैं. ये रहा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के आसपास कितनी लेयर हैं? 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, दैट इज chorion, amnion, yolk sac और allantoin. तो these 4 layers are known as extra embryonic membrane which प्ले ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस. ये बात आप लोग याद रखें. तो सबसे पहले हम जिस लेयर के बारे में बात करेंगे दैट इज chorion. नाउ chorion के बारे में अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रोफोएक्टोडर्म. नेक्स्ट पॉइंट,
It is the outermost extra embryonic membrane around the embryo or fetus. Now it is outermost layer, outermost extra embryonic membrane. Next point, this chorion form the placenta, form placenta. Now ये तो हो गया इसके हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में. अब इसका फंक्शन क्या है? It act as a extra embryonic lungs. अब lungs बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर it help in the respiration. Actually this is the layer which help in the exchange of respiratory gases between the mother and the fetus. Mother के blood से O2 diffused होती है कहाँ पर? In the fetal blood, whereas fetal के blood से harmful gases that is CO2 exchange होती है in the maternal blood. ये काम करता कौन है? ये काम करता है हमारे पास chorion. ध्यान रहे, it act as a extra embryonic lungs because it help in the respiration. Now अब आती है हमारे पास में second layer. The second layer is, जिसके बारे में पढ़ना है, that is amnion. Now I think आपको याद होगा कि सर amnion is the layer which is formed by the vacant space. जो कब बनी थी? आपको याद होगा कि inner cell mass थोड़ा अपवर्ड मूव कर गए थे कब? जब सेल्स ऑफ रॉबर्ट डीजनरेट हो गए थे और वहाँ पर क्या हुआ था? उनके बीच में छोटी सी स्पेस बन गई थी विच ग्रोज along with the development of embryo and move around the fetus. Now that layer is known as amnion, and this amnion, the vacant space in the amnion is known as amniotic cavity, which is filled by a fluid which is known as amniotic fluid. अब सवाल ये आता कि सर ये फ्लूइड आया कहाँ से? राइट, एक्चुअली में ये फ्लूइड है, ये दोनों तरफ से रिलीज हुआ है. दैट इज ये रिलीज होता है फ्रॉम द एमनियोटिक amnion itself and also from the fetus. Now अब एक और बात करते हैं, अब बात करते हैं अबाउट द amniotic fluid. ध्यान देना, इस amniotic fluid में प्रेजेंट होते हैं सेल्स ऑफ एम्ब्रियो जो कि डिटैच हो जाते हैं एम्ब्रियो से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्म लेयर एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. वो सेल्स कहाँ जाते हैं? वो सेल्स जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी, दैट इज एमनियोसेंटेसिस. नाउ व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली में टेक्निक है जहाँ पर इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट सा, उसको कल्चर किया जाता है और फिर जब उसकी स्टडी करके ये पता लगाया जाता है अबाउट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एम्ब्रियो. अब इससे क्या होगा? इससे उसके अंदर अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो पता चल सकता है, प्लस इससे उसका सेक्स भी पता चल सकता है. तो वो जो फ्लूइड लेते हैं एमनियोसेंटेसिस में, कौन सा लेते हैं? वो लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. और कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके अंदर सेल्स होते हैं विच आर डिटैच्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड दे हैव द सेम कंपोजिशन जीन्स की जो कि एम्ब्रियो के अंदर है. अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं. नाउ फंक्शन, प्रिवेंट द एम्ब्रियो और द फीटस फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाता है, इसे गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम द shock or jerk during the mother's movement, and also it prevent the infection. ये infection जो भी prevent करता है, that is antibacterial properties हैं इसके अंदर, इसीलिए. तो ये बात हो रही है हमारे पास में chorion और amnion के बारे में. अब हमारे पास दो लेयर और बची हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. Now the next layer is yolk sac, is majorly present in oviparous. oviparous मतलब जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं उनके अंदर yolk sac प्रेजेंट होती है एज ए मेजर पार्ट, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज प्रेजेंट इन पुअरली डेवलप्ड स्टेट. अब क्वेश्चन आता है क्यों?
बेसिकली यॉट सेट क्या करता है, यॉट सेट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड दिस फूड इज देन प्रोवाइडेड टू द एम्ब्रियो फॉर इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। अब ह्यूमन के केस में क्या होता है, दिस नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द मैटरनल ब्लड, दैट्स वाई इन द केस ऑफ ह्यूमन दिस इज पुअरली डेवलप्ड। अब ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट तो है ये, भले ही रूडिमेंट्री स्टेज में, भले ही लेस डेवलप हो। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, उसे स्टोर करना, उसे डाइजेस्ट करना और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र टू एम्ब्रियो, ये इसका काम होता है। इसलिए हम इसको एक कॉमन नेम भी दे रखे हैं एंड दिस कॉमन नेम इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। क्लियर? ध्यान रहे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वाई इट इज पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन बट मेजरली डेवलप्ड इन ओविपेरिस। इसका आंसर शायद आपको मिल गया। एंड नाउ द नेक्स्ट लेयर इज allantois. Now this allantois is also poorly developed in the case of human. Basically what it does, it store and remove nitrogen waste such as urea etc. from the fetus. अब इसका भी जवाब आपको शायद मिल गया होगा, वाई इट इज पोरली डेवलप्ड इन ह्यूमन, बिकॉज इन ह्यूमंस ये काम कौन करता है, ये काम डायरेक्टली होता है वाया ब्लड। जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं फ्रॉम द फीटस वो कहाँ एंटर करता है, उसके ब्लड में एंटर करता है। वो ब्लड कहाँ जाता है, इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मैटरनल ब्लड, और वहाँ पे क्या होता है, वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। इसलिए allantois इज ऑल्सो पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। नाउ इसीलिए इसको एक नाम भी दे रखा है, इसको अलग से एक नाम दे रखा है, वो क्या है, इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी, इट एक्ट एज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी। क्लियर? तो अब ये हमारे पास 4 लेयर हो गए, कॉरियन, एमनियन, यॉट सेट, allantois, जिसमें कि यॉट सेट और allantoin हमारे पास पुअरली डेवलप्ड होते हैं इन द ह्यूमंस। तो अब ये हमारे पास 4 लेयर हो गए, कॉरियन, एमनियन, यॉट सेट, allantois, जिसमें कि यॉट सेट और allantoin हमारे पास पुअरली डेवलप्ड होते हैं इन द ह्यूमंस। अब हम इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं इस पूरी वीडियो की समरी पे। हमने इस वीडियो में पढ़ा अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उनके फंक्शन के बारे में, लेकिन अब उसे समराइज्ड वे में दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। और यहाँ पर इनकी समरी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आजकल नीट में और बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आ रहे हैं। एंड नाउ द फर्स्ट पॉइंट इन द समरी इज़ कि ये जो कॉरियन, एमनियन, यॉट सेट और allantoin है जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, these 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन एमनियोट्स। एमनियोट्स मतलब बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ना इन्हीं तीनों के अंदर ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि भैया दीज चारों लेयर आर डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रोफोइक्टोडर्म, ये जनरल बात है, लेकिन अगर कोई डीपली पूछे तो यहाँ पर इसका आंसर है कि कॉरियन एंड एमनियन basically they are derived from the trophoectoderm, whereas yot set and allantois are originate or derived from the endoderm। अब जैसे ही मैंने बोला एंडोडर्म, आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि सर विच एंडोडर्म, बिकॉज आपने पढ़ा है कि सर एंडोडर्म के 2 पोर्शन होते हैं, वन पोर्शन इज इन द कॉन्टैक्ट विद द ट्रोफोएक्टोडर्म एंड अदर इज इन द कॉन्टैक्ट विद द मेसोडर्म। तो आपको तो याद ही होगा कि ट्रोफोएक्टोडर्म में मेसोडर्म का वो पोर्शन जो कि किसके कॉन्टैक्ट में होता है, ट्रोफोएक्टोडर्म के, वो बनाता है प्रिमिटिव गट
whereas the portion of endoderm which is in contact with the mesoderm form the yod set and allantois. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आगे बढ़ते हैं. Now chorion and amnion are well developed in the case of human, but yod set and allantois are poorly developed in human. अब जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, nowadays it is very trending. क्या ट्रेंडिंग है? एक्चुअली में ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है, इनकी आउटर और इनर जो लेयर है वो किससे ड्राइव हुई है? आजकल ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं. तो समझिए जरा, अगर हम कोरियन की बात करते हैं तो द आउटर लेयर ऑफ कोरियन इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म, वेयर इज द इनर लेयर ऑफ द कोरियन ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म, एंड दिस कंडीशन इज जस्ट रिवर्स इन द केस ऑफ एमनियन. इन द केस ऑफ एमनियन द आउटर लेयर इज ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म, वेयर इज द इनर लेयर इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म. तो थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि क्या पूछा है उसने. लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है. इन द केस ऑफ यॉड सेट एंड allantois, इन दोनों के अंदर ही आउटर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म, वेयर इज द इनर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. ये थोड़ा सा सिंपल है. तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. इतना पोर्शन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ याद रखिएगा इसे, ठीक है. एंड नाउ द फंक्शन ऑफ ईच मेम्ब्रेन. हमें पता है जो कोरियन है वो क्या करती है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. इट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट फॉर्म द प्लासेंटा. ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग्स. नाउ जो सेकेंड लेयर है दैट इज एमनियन. एमनियन के अंदर एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड मेक द फीटस टू मूव एंड ऑल्सो protect it from the desiccation, protect it from the jerk or shock, and also protect it from the infection. Overall हम कहें तो it is protective in nature. Which one? Amnion. And it is also known as private pond of the fetus. Next is yod set. Now we know that yod set provide nourishment. That's why it is known as extra embryonic gut. Basically it absorb, digest and then supply to the fetus. Now the fourth one is allantois. Now allantois mainly function as extra embryonic kidney, as it remove the nitrogen waste from the fetus. तो अब मैं समझता हूँ कि हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो. अब आपकी बारी है, इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसके नोट्स बनाइए, इसे याद करिए. ध्यान देना, समझिए यहाँ से, पढ़िए यहाँ से, पर नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे क्योंकि वो नोट्स आपके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीटस, वो भी मंथ बाय मंथ. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू.